301 KEYTONE Company. Construct a payoff table to show all possible profit outcomes and recommend the level of production KEYTONE Company should choose based on the expected values. KEYTONE Company is recently established business specializing in the manufacture of a range of products for the fitness and health food market. It has recently developed a new product, Protein Power, which it is almost ready to launch. Ketone estimates that the demand will be between 3,000 and 4,000 units per month, but protein power can only be manufactured in batches of 500. Therefore, Keton must decide whether to manufacture 3,000, 3,500, or 4,000 units. Given the short shelf life of of protein power, any units remain unsold at the end of each month must be thrown away and have no scrap value. So Excel पे कैसे रहेगा वो 301 पर्टिकुलर्स नहीं पर्टिकुलर्स क्यों पर्टिकुलर नहीं है सप्लाई लिख देता हूँ मैं सप्लाई नेक्स्ट है 3,000 3,500 and 4,000 demand would be 3,000 4,000 हाँ फिर the variable production cost of making 1 unit of protein power is as follows ये variable cost हो गई total variable direct material labor direct material labor और फिर तो variable overheads इसमें आता है 6.2 2.7 1.35 रीड करेगा एमी रीड करना एक सेकंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया अपने को फिर उसके बाद प्रोटीन पावर विल बी प्रोसेस्ड ऑन मशीन एक्स एवरी टाइम द मशीन इज सेट अप फॉर अ न्यू बैच ऑफ 500 units it must be cleaned and inspected at a total cost of $240. In addition to the above production cost, Ketone Company incurs selling and distribution cost of 0.90 for every unit sold. Ketone Company has launched only one other similar product, and based on the information from that launch has estimated that the probabilities associated with the each demand of protein power will be this 0.2, 0.3 or 0.5. However, while Ketone Company believes that it could be achievable, that it could achieve a selling price of $35 per unit of protein power to sell up to 3,500 units, it would need to charge a lower selling price of $33 per unit for all units sold to achieve a sales volume above this. Okay. The managing director is very risk averse and is concerned that the probabilities above noted above may not be accurate. She has been in discussion with a local market research company who has offered to provide for a fee of 100% accurate information about the actual demand level for protein powder. ये शायद अलग क्वेश्चन का है हाँ सी में दिया है ये appropriate for हाँ the तो वो managing नहीं director होगा use the expected values. राइट तो वो नहीं होगा ये बात नहीं है तो अभी अपने को वेरिएबल कॉस्ट के बाद बोला था प्रोटीन पाउडर विल बी प्रोसेस्ड ऑन मशीन एक्स every time the machine is set up for a new batch of 500 units it must be cleaned and inspected at a cost of 240 तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया
नहीं, इन फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ, 500 के बैच में ना, तो 500 समझ तो 3 बार कर रहा है, 3,000, तो फिर तेरा आएगा 6 बार ना। अच्छा वैसे। हाँ, और डिमांड भी अभी रनिंग तीन हजार रनिंग पाँच है, सौ रनिंग है। और 4,000 है। नीचे रनिंग प्रोबेबिलिटी कॉस्ट भी है। दी है उसकी। हम्म, अभी अपने को एक एक करके वो निकालना पड़ेगा ना, फॉर 3,000 यूनिट्स, हम्म, द सप्लाईज ऑफ 3,000, और फिर वैसा ना। बराबर वैसा ही करना है। तो अभी पहला तो 3,000 यूनिट्स। तो देख, अगर मैं, अच्छा मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऐसा लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रॉफिट पर यूनिट, वो आता है कितना। चाहिए, ऐसे नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं पर यूनिट कर दे लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं मशीन यूनिट्स लिख कॉस्ट, देता हूँ। मशीन हम्म। कॉस्ट कहाँ पे लेगा? मशीन कॉस्ट, वो ओ, ये 240 इंस्पेक्शन का कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, हाँ। इंस्पेक्शन। तो वो भी यहाँ पे लिखना चाहिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट। फिर आता है प्रॉफिट तेरा। तो 3,000 यूनिट्स के लिए ना, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर 3,000 यूनिट्स। नहीं नहीं, इसको ना ऐसे लिख देता हूँ, 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, 3,000 डिमांड। यहाँ पे सबका बनाना पड़ेगा वैसे यार, 3,000 यूनिट, 1,500 डिमांड, 500 डिमांड, और 3,000 यूनिट्स। पहले नहीं, ये एक कर मिनट। लेना, फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला भी पेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, बट एक मिनट, चल ठीक है, बात तो सही है, बराबर बोला तूने। तो तेरा सेलिंग प्राइस है 35 बोला ना, नीचे क्या हुआ था, हाँ, सिंगल 35 पर 35 बोला यूनिट, है। सेल अप टू 3,000, ठीक है। थ्री थर्टी थाउजेंड फाइव फाइव वेरिएबल कॉस्ट अपने को ऊपर दिया हुआ था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.9 दिया हुआ है, बराबर। और इंस्पेक्शन कॉस्ट तो अपन नाइन डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली नहीं है ना, वो 240 इंटू 500 करना, 240 इंटू, अभी 500 6 बार हुआ है, तो 6 बार ऐसा। अभी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वही अपना सेलिंग का यूनिट्स भी होगा, मतलब जो सेलिंग, अपने ने सेल्स कितना किया, 3,000 यूनिट्स का, तो अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 3,000 यूनिट्स का ही होगा। और यहाँ पर नीचे भी 3,000 ही आएगा, वेरिएबल और कॉस्ट, बराबर। तो तेरा प्रॉफिट जो आना चाहिए, वो आना चाहिए दिस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस दिस, तो आता है 7,110। अभी अगर मैं 3,000 डिमांड है और 3,500, अच्छा नहीं नहीं, अभी इसके लिए शायद वैसा नहीं करना है, क्योंकि मेरा 3,000 का डिमांड है, तो मेरा 3,000 का सप्लाई बराबर बैठ गया। अगर मेरा 3,000 का सब का 3,500 का अगर मेरा डिमांड है, लेकिन मैं सप्लाई तो 3,000 का ही है, तो इसलिए ऐसे आ गया। और मेरा 3,000 का सप्लाई ही है, लेकिन मेरा डिमांड 4,000 है। इट डजेंट मैटर बिकॉज माई सप्लाई इज ओनली 3,000। ये हो गया। अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, थर्ड वन, 3,500 यूनिट्स, मेरा यूनिट्स आ गया 3,500। यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट 3,500, यहाँ पर 3,500 यूनिट्स पर 3,500, वेरिएबल कॉस्ट इज इतना। और अभी मेरा 3,500 बनने के लिए कितने बार 500 डालना पड़ रहा है, 7 बार 500 डालना पड़ रहा है मेरे को, यहाँ पे बोला गया है
फॉर न्यू बैच ऑफ 500 इट मस्ट बी क्लीन एंड इंस्पेक्टेड फॉर 240। तो आ गया मेरा 81795। रुक ना, मेरे को बता। हाँ उसमें फर्स्ट वाले में तेरा हाँ। 3000 ये था। कहाँ पे गया? सप्लाई। हाँ, 3000 तेरा सप्लाई था, 3000 तेरा डिमांड भी था। तो अभी तेरा 3500 का सप्लाई है, बट तू डिमांड 3000 ही कर रहा है। इसलिए अपन वो दूसरा वाला नहीं कर रहे ना। दूसरा वाला मतलब? लाइक वो जिसमें देख अपन ये इसमें करते हैं अभी। सप्लाई 3000 है, बट अपन अपना डिमांड 3500 हुआ है, तो अपन वो 3500 के बेसिस पे अपन कॉस्ट निकालते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अगर तेरा सपोज तूने सप्लाई किया है 3000 बराबर है, और मार्केट में हाँ डिमांड चल रहा है 3500 का, तो तेरे को हाँ डिमांड हाँ। से क्या, तो फिर तेरे को डिमांड से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि तेरा क्योंकि सप्लाई तूने तो थ्री सप्लाई थाउजेंड का थ्री ही है। थाउजेंड ऐसा। ठीक है, समझा। यहाँ पर भी 4000 के लिए सेम आता है, लेकिन यहाँ पर जो अभी तो पहले जब 3500 के सप्लाई पे आएगा तो तेरे को एक चीज मिलेगी, डिमांड ऑफ 3000। तो वहां पर हाँ क्या हो हाँ। रहा है कि तेरे को मतलब डिमांड तेरी 3000 की ही है सिर्फ। ऐसा यस, हो रहा है। पर तूने 3500 प्रोड्यूस किया है। हाँ, तो तूने तो सेल सेल्स कितने तो तेरे किए? को थ्री थ्री थाउजेंड ही थाउजेंड किया है। रहेंगे। तो तेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 3000 का ही रहेगा। 3000 ही लेकिन जो रहेगा। तेरा वेरिएबल कॉस्ट है, वो तूने मेहनत जो की थी, वो तूने हम्म। मेहनत 3500 की थी बेचने समझा। की। नाइस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी आएगी शायद। हम्म, अभी यहाँ पर आएगा 4000 यूनिट्स, यहाँ पर भी आएगा 4000 यूनिट्स। 4000 यूनिट्स, 3500 डिमांड, 4000 यूनिट्स, 3000 सॉरी। डिमांड। भी मैंने फर्स्ट केस में बेचा 4000 और 4000 बराबर, लेकिन ये बनने के लिए 8 टाइम लगा। यहाँ पर भी 8। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने सेल किया 3500, ये जो मैंने मेहनत की थी वो मैंने 4000 की थी। और यहाँ पर मैंने बेचा 3000, लेकिन मैंने मेहनत जो की थी वो मैंने 4000 की थी। तो ऐसा आ गया। तो 59380, देन ये आता है 76430, और ये आता है 93480। ऐसा होता है ये। सम नंबर क्या है? 301 ना? अरे सेलिंग प्राइस चेंज होगा ना 3500 के बाद? 33। हाँ, 3000, थ्री थाउजेंड मैंने ना फाइव हंड्रेड एक के बार, बाद ना। मैंने एक पिज्जा बता का रहे। सम देखा था। पिज्जा ने क्या किया था, सेलिंग प्राइस में से ही उसने सेलिंग एंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस किया था, जो भी काफी सेंस बनाता है तो देखेगा तो। सेलिंग प्राइस में से ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस, हाँ 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 हाँ, हाँ, समझा। समझा। तो ये रहा इसका सम। वे ऑफ टेबल तो बिल्कुल सही बनाया अब अपन ने। ये रहा, बिल्कुल सही। 76430, 764, सारे अमाउंट बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से कभी करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए कैसे करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना दिया है नीचे? मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने बोला था क्या? देन रिकमेंडेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो 0.2, 0.3, 0.5।
into 0.2 bracket close plus bracket open कितना दिया into 0.3 plus bracket open into 0.5 bracket close. So this is the expected value that we should produce. चेक कर लेते हैं 8 1 नहीं क्या हो गया did not take into account everything happened your the amount changed. Okay, wait 4,000 8 oh right अरे अपन ना सेलिंग प्राइस अपना चेंज हो रहा है तू देखेगा तो इसके लिए तेरा फॉर यूनिट्स क्या? अबाव जो है ना अमाउंट फॉर यूनिट्स अबाव हाँ तो 3,500 योर सेलिंग प्राइस इज चेंजिंग टू 33 मैंने नहीं यस, किया ना वो नहीं बोला? अभी तो मैं मैं नहीं किया बोला भी ना तेरे को बीच 33 में। अरे बोला था क्या मैं सुना ही नहीं भाई सॉरी तो वो 33 ठीक है तो सबसे आ रहा है that यस। that's okay so therefore the expected value would be 3,500 units is something that we would supply सही है आजा फिर अभी इनका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम फी विच कीटोन वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे द मार्केट रिसर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल डिमांड लेवल्स तो अपने को एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालना है समझा यस यस। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन हम करता हूँ ना इसको मैं फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यूज ठीक है वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन वुड बी एक मिनट ब्रैकेट ओपन इंटू 0.2 प्लस इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा 3,500 के रेंज में ये सबसे हाईएस्ट है सो पॉइंट इंटू 0.3 ब्रैकेट क्लोज प्लस इनमें से सबसे हाईएस्ट है ये सो ब्रैकेट ओपन दिस इंटू 0.3 सॉरी 0.5 है ना वो लास्ट की प्रोबेबिलिटी लास्ट रो की तो ये ब्रैकेट क्लोज ओके ओके देयर इज सम सिंटेक्स क्या हो गया इसको यार पता नहीं मैंने कुछ तो फॉर्मूला एरर दिखा रहा था लास्ट मोमेंट पे बेसिकली सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज को सिलेक्ट करना है तो पता है क्या ये एरर क्या है हमें ब्रैकेट क्लोज इनटू 0.3 क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन इनटू 0.5 सब सारे के सारे हाई प्रोबेबिलिटीज विच गिव्स मी वैल्यू विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन एज 81300 अब वैल्यू विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन would be
वैल्यू विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन वुड बी, क्या करते थे मैम, सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज पर निकालते थे और उनमें से सबसे हाईएस्ट जो रहता था वो अपन करते थे ना। क्या रे, तो आंसर क्या आता है, करते थे? सारे जो प्रोबेबिलिटीज अभी अपन ने जो अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू हम्म निकाला उसमें का सबसे हम्म। हाईएस्ट लेना है ना, हाँ वैल्यू हाँ, विदाउट वैसे परफेक्ट इंफॉर्मेशन, तो हाईएस्ट। आंसर वुड बी 2915.5। 2915.5, लेट्स गो 2916। So पहले with perfect information is only the row with the highest amount being selected, and then value without perfect information is all the expected values, then the highest of that amount, and you have to subtract that. Okay, ये अपन ने कैसे निकाला, डिफरेंस बिटवीन ईवीज ऑफ प्रॉफिट निकाला ना, लेकिन ये एक्चुअली है द, हाँ, द मैक्सिमम फी विच कीटोन वुड बी प्रिपेयर्ड टू पे द मार्केट रिसर्च। Last question, briefly discuss whether it is appropriate for the managing director to use expected values as basis for making the decision about the production level of protein power, and explain one alternative uh, de- decision criterion which might be useful. The managing director is very risk averse and is concerned that the probabilities noted above may not be accurate, तो वो risk averse है, and whereas expected values have been taken into consideration by risk neutral people ना, कि हम्म। sore loser कौन लेते हैं। नहीं नहीं, सो लूजर इज रिग्रेट। अच्छा, मैक्स मिनिमैक्स रिग्रेट। मिनिमैक्स ये रिग्रेट, मैक्सिमिन का है ना? रिस्क कवर्स वाले मैक्सिमिन का है शायद, क्योंकि रिस्क रिस्क एवर्स, हाँ सीकर्स हाँ इज मैक्सिमैक्स का। हाँ, इट इज रिस्क न्यूट्रल, ये वाला रिस्क एवर्स तो मैक्सिमिन। मैक्सिमम है। सो ही शुड बी, तो एक जो ऑल्टरनेटिव क्राइटेरियन यूज कर सकता है वो डिसीजन के लिए, दैट इज ये मैक्सिमिन। मैक्सिमम। मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग। Kevin in current discussion with local market research also offered to provide for a fee 100% accurate information. Okay. देख मुझे नहीं लगता उसके लिए ये यूजफुल है, बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू इग्नोर्स द वेरिएबिलिटी ऑफ सर्टन एक्सपेक्ट सर्टन आउटकम्स। ठीक है, जब वो वैरी करता हम्म। है तो वो चीज को इग्नोर करता है। हाँ। और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है वो भी। Expected values are only used for decisions which occur over a period of time or a number of times। अभी ये एक्चुअली हो रहा है ना ज्यादा बार, क्योंकि इसके सप्लाई और डिमांड की बात है, तो ये हो तो रहा है ज्यादा बार। इसके स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से आंसर, बट इस पे इसको बीच में नहीं हम्म। डाल सकते, इस पॉइंट को चेक करें। क्या? Expected values is a long run weighted average of the outcomes of a decision that is repeated time and time again. Since it is just an average, the actual outcomes will vary and none of them may be the same as the average calculated. It is therefore useful for a risk neutral decision maker who is neither seeking or nor avoiding risk and will be happy with the average outcomes. It is also dependent on the accuracy of the probabilities applied to the outcomes. The decision about how much protein power to produce is repeated decision. So in this regard, the use of expected values would seem appropriate. अच्छा, इन्होंने इस चीज को बीच में ही डाला है. The managing हम्म director is, however, already concerned about the accuracy of the probabilities and looking to buy additional research. So the method does not seem appropriate in light of those concerns. Also, the managing director of the company is risk averse, not risk neutral. So it may not be better
to use the criterion like maxi. So it Hmm. may be better to use a Maybe better. criterion like maximin. Using maximin, the decision maker looks at the lowest outcome of each supply level and picks the supply level with the highest of the lowest outcomes, Yes. thus minimizing any losses. Any losses. काफी अच्छे पॉइंट्स है. Yes. नई मीटिंग